Good evening, class. In last video, we have discussed the biotechnology chapter and we have discussed lots of things in the biotechnology. And the last topic was the chimeric gene. And in chimeric gene, we have seen how the recombinant DNA technology was handling. So, depending upon the nature of basic principles of recombinant DNA technology, we are going to just see how the DNA are generally get combined after the breaking or after the cutting, and how the DNA are gets jointed by using different types of enzymes. Okay, so first we are going to discuss some most and basic important characters. Actually, this is the adject view of any plasmid vectors and the DNA of any Escherichia coli bacteria. Okay, because in according to the bacteria, every bacteria have most developed types of plasmid. These are the extra chromosomal double stranded DNA segments which are found in bacteria, and these are called as plasmid. Once again, I am repeating, plasmids are double stranded extra chromosomal double stranded DNA segments are found in the most of the bacteria, and they have well developed of DNA systems. But we are going to discuss only how the DNA are generally gets combined. DNA जो है combine कैसे होता है इसमें after the breaking down, we have to discuss in this video. ठीक है, इसमें हमको यही सारी चीजों को डिटेल से देखना है. So first we are going to discuss some most important part. Now we have to see these are the plasmids of any bacterial cell and this is the DNA. ठीक है, अब ये plasmid है, DNA है. We are just extract plasmid from the DNA because they have extra chromosomal. ये extra chromosomal DNA segments होते हैं. Generally we have to take it as a vector के form में हम इसको बाहर निकाल लेते हैं. Then we have to collect a foreign DNA from another part. हम किसी बाहर से किसी foreigner से DNA के parts को carry करते हैं. Then we use restriction endonuclease to cutting down. हम restriction endonuclease का यूज करते हैं फॉर कटिंग. इसको काटने के लिए एक एंजाइम होता है, ठीक है, जो इनको डिसॉल्व करते हैं. एंड हियर आल्सो फॉरेन डीएनए इज आल्सो कटिंग फ्रॉम द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. जब दोनों रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से जब कट होते हैं, आफ्टर दैट वी हैव टू ऐड, इसके बाद हम इसमें से आधा पोर्शन निकाल कर इसके आधे पोर्शंस को यहाँ पे बाय यूजिंग that enzyme, ligase enzyme. Ligase enzyme, first and most important, restriction endonuclease is a special enzyme which is used for cutting of DNA segments, and ligase is a special enzyme which is used to ligase. Ligase means किसी चीज को जोड़ने के लिए ligase enzyme का यूज किया जाता है. That is the most important and beneficial part. After the ligation, that the recombinant vector gets corrected. यहां से जो पार्ट कटा हुआ था, यहां से ये वाला पार्ट अटैच हो गया और ये वाला जो पार्ट था यहां था, दैट इज कॉल्ड लाइगेशन. सो डीएनए जो थे वो फॉरेन डीएनए के साथ अटैच हो गए बाय द यूज ऑफ लाइगेज एंजाइम, एंड दैट here I have written here foreign DNA is inserted and it gets recombinant vector, and after that they transferred into the Escherichia coli. It is a type of bacteria Escherichia coli में उसको ट्रांसफर कर देते हैं, and by the help of transformation it gets converted and it gets replicated more and more. Most important property in plasmid is that plasmid का एक खुद का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है कि प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड डबल सर्कुलर एंड दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ रिप्लिकेटिंग. उसके बाद यहाँ पे जो डीएनए के कंपोनेंट्स कम दिख रहे थे, वो डीएनए के यहाँ पे जो प्लाज्मिड था यहाँ पे मोर नंबर में दिखाई दे रहा. व्हाई? बिकॉज प्लाज्मिड हैज ग्रेट कैपेसिटी ऑफ सेल्फ रिप्लिकेटिंग. प्लाज्मिड के पास खुद का सेल्फ रिप्लिकेटिंग पावर होता है जिससे वो अपने नंबर ऑफ प्लाज्मिड वेक्टर्स को इंक्रीज कर देता है आफ्टर पुटिंग in the transformation of Escherichia coli. Okay, so in this theory we have discussed how the DNA gets combined after the breaking down. DNA जब कटता है, जब टूटता है, उसके बाद how the DNAs are gets combined. DNA कैसे रिकम्बाइन हो जाता है, that is called the recombinant technology of DNA. recombinant का मतलब होता है कि जो हमारा DNA है most special डीएनए हमारा रिकम्बाइन हो जाता है, उसी प्रोसेस को हम रिकॉम्बिनेंट ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं. ओके, सो this is from DNA technology. Most of the time these questions may be asked, so this is a very important questions. ये बहुत important question है and you have to learn from that portion to that also. ठीक है, वहां से आपको पूरा यहाँ तक लिखना है, and first you have to mention all the things with a well labeled and neat diagram, and you have to also mention the different types of enzyme what used here, जो भी यहाँ पे used हो रहे हैं. ठीक है, so after that we are going to discuss that
we have to discuss palindrome sequence. Okay, what is the meaning of palindrome sequence? So many times we have discussed palindrome sequence is the special type of sequence in which if we read from front or back same meaning we get. अगर हम उसको फॉरवर्ड से पढ़े या बैकवर्ड से पढ़े, both the meanings are appeared as similar, that is called palindrome sequence. palindrome sequence का मतलब होता है whenever we cut the different types of segments of DNA या फिर और भी बहुत सारे, उनका जो sequence जो order है it should not be this manner. उनका अगर this manner हुआ तो हमें जो palindrome sequence है वो नहीं मिलेगा. Suppose we are taking an example of MAGA. Suppose we are taking an example of madam, so it is also considered as palindrome sequence. Why? Because if you are reading from the forward MADAM madam, so if you are studying from back side MADAM, okay, both अगर आप दोनों तरफ से स्टडी करोगे चाहे फॉरवर्ड से चाहे बैकवर्ड से, दोनों का मतलब जो है सेम निकल कर आएगा. ठीक है, it appears as a same meaning and that is called the palindrome sequence. इसको हम palindrome sequence होते हैं. and that is one more example is मलयालम. मलयालम भी जो है उसको चाहे फॉरवर्ड से काउंट कर लें या फिर बैकवर्ड से काउंट कर लें, both the meaning will be obtained as same, so that is called palindrome sequence. ठीक है, so most important point we have discussed in this case, if we are cutting the DNA and most of the fragmented parts of any Escherichia coli, that time the sequence should not be changed. If the sequence is changed, it means there is a not properly outcomes will become. कोई भी outcomes हमें देखने को नहीं मिलेगा. So we have to follow all the segments and we have to use the endo restriction endonuclease to cutting any DNA segments in a proper manner. इसको हम palindrome sequence इसलिए यूज करते हैं क्योंकि कोई भी सीक्वेंस है अगर थोड़ा भी उसमें डिसमैनर आया इसका मतलब वो सीक्वेंस मैच नहीं करेगा और वहां पे हमारा palindrome सीक्वेंस नहीं आएगा. ठीक है, so it is not a most important question for your board exam. So further we are going to discuss some more interesting characters and that's why palindrome sequence का मतलब है that they similar in both the direction. किसी भी डायरेक्शन से ले लो, चाहे फॉरवर्ड से ले लो चाहे बैकवर्ड से ले लो, दोनों का जो डायरेक्शन है एडजेक्ट we will obtain as a same manner. ठीक है, after that when DNA ligase and restriction endonuclease. restriction endonuclease का सबसे बड़ा रोल इसलिए है क्योंकि जनरली इट इज यूज्ड फॉर कटिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स या प्लाज्मिड को काटने के लिए यूज करते हैं, लेकिन डीएनए लाइगेज इज यूज्ड फॉर लिंकिंग. लिंकिंग मतलब किसी दो पार्ट्स को अलग अलग कटे हुए पार्ट्स को जोड़ने के लिए जिस पार्ट्स का यानी जिस एंजाइम का यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड लाइगेज. लाइगेज वो स्पेशल एंजाइम होता है. ठीक है, सो लिंकर्स एंड एडाप्टर्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल पार्ट. व्हाई? बिकॉज लिंकर्स एंड अडाप्टर्स इज ऑल्सो यूज्ड. लिंकर्स मतलब होते हैं सपोज यहां से यहां कोई चीजें बीच में कट चुका है, सो लिंकर्स का मतलब होता है लिंकर्स आर ऑलवेज इजी टू ज्वाइन दैट कटेड पोर्शंस. इसका मतलब जो पोर्शन यहां से कटा था लिंकर और अडाप्टर उस पोर्शंस को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे. मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे बिहेव एज अ एंजाइम एंड स्पेशल साइट फॉर ज्वाइनिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेगमेंट्स. यानी दो अलग अलग फ्रेगमेंट्स को एक साथ अटैच करने के लिए लिंकर और एडाप्टर्स का सबसे बड़ा यूज होता है. ठीक है, सो हियर ये फॉरेन डीएनए था, ये वाला पार्ट फॉरेन डीएनए. फॉरेन डीएनए हमारा अलग था, दैट इज स्मॉल. दैट टाइम वी यूज लिंकर्स एज अ एडाप्टर मैनर. लिंकर को हमने लाकर एडाप्टर के साथ जोड़ दिया. सो इसको फॉरेन डीएनए के साथ जब दो हमारे लिंकर्स ऐड हो जाएंगे बाय यूजिंग डीएनए लाइगेज. डीएनए लाइगेज की मदद से दो लिंकर्स यहाँ पे लाके हमने जोड़ दिया या एडाप्टर्स हम लोग बोल सकते हैं. वहां से हमारा फॉरेन डीएनए कंप्लीट स्टैंड बनता है. दैट इज द यूज ऑफ लिंकर्स एंड एडाप्टर्स. इट इज आल्सो डन बाय द यूजिंग डीएनए लाइगेज. इसका जो यूज होता है वो भी डीएनए लाइगेज की मदद से ही होता है. ठीक है, सो एट लास्ट व्हेन दिस ऑल द प्रोसेस आर डन, आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस दैट सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स आफ्टर कटिंग बाय यूजिंग द restriction endonuclease of any DNA fragments or plasmid. That time how to separate DNA fragments. अगर हम किसी DNA फ्रेगमेंट्स को काटे हैं किसी भी प्लाज्मिड वेक्टर से कहीं से भी, तो उस डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम कैसे सेपरेट करते हैं. ठीक है, सो दैट टाइम वी हैव टू यूज अ स्पेशल मेथड एंड दिस स्पेशल मेथड इज आल्सो यूज्ड इन द most of the higher classes and graduation level also, and this process is called as gel electrophoresis. Okay, so in gel electrophoresis we have to discuss some more interesting characters because so many times the questions may be arises that explain the meaning of gel electrophoresis in a detailed diagram. So we will discuss the only definition and only the adject part of gel electrophoresis and how they work, but the diagram is given in your NCERT book and Zivlal book, so you have to follow from that portions also. Okay, so in this we have to discuss
how the gel electrophoresis are generally used to detect different types of fragments of DNA particles. Okay, so we know that generally DNA is also cutted from the important parts of restriction endonuclease. Okay, we know that generally DNA is generally cutted by the restriction endonuclease, and that time we obtained several types of small fragments of DNA. That time how to get only the DNA fragments in a separated manner, उस DNA fragments को हम कैसे separate करेंगे? So we have to use a special technique, and that is called gel electrophoresis. Gel electrophoresis is a special technique. In this we have to study when the DNA is treated with restriction endonuclease. As we know that जब हम किसी DNA parts को किसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साथ ट्रीट करते हैं, इसका मतलब उसके साथ हम जब भी रिएक्शन करते हैं, द फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए आर ऑब्टेन्ड, हमको वो सारे फ्रैगमेंट्स देखने को मिलते हैं, एंड दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फ्रैगमेंट्स. जो भी डीएनए के फ्रैगमेंट्स होते हैं वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की वजह से टूट जाते हैं, एंड दीज फ्रैगमेंट्स आर सेपरेटेड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. उस फ्रैगमेंट्स को हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से अलग करते हैं. सो व्हाट इज द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? फर्स्ट ऑफ ऑल, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज डिजाइन्ड बाय are discovered by A. Tislius in 1937. एक साइंटिस्ट थे A. Tislius जिन्होंने 1937 में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को डिस्कवर्ड किया था, and he was a very great scientist. After that he used agarose gel. Agarose gel we generally used in the 12th and 11th class biopractical. Okay, agarose gel एक प्रकार का जेल होता है to place inside the gel electrophoresis machine, and that time DNA fragments is also there, and when you put the gel agarose gel on the upper side of the DNA fragments, that time DNA and RNA carry some charges and they forward towards the positive charges. Okay, DNA and RNA, suppose DNA and RNA has negative charges. Okay, when you put the gel electrophoresis and you have to passes the electric medium inside the gel electrophoresis machine, that time DNA and RNA fragments are get separated from each other and they run towards the पॉजिटिव चार्जेस. ये पॉजिटिव यानी जो नेगेटिव वाले चार्जेस होते हैं वो पॉजिटिव चार्जेस की तरफ जाते हैं. दैट इज आल्सो डन बाय यूजिंग आल्सो द इथीडियम ब्रोमाइड. एक इथीडियम ब्रोमाइड नाम का एक सब्सटेंस होता है, उसका भी यूज करके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इन सारे डीएनए सेगमेंट्स को हम एक तरफ ले जाकर उनको कलेक्ट कर देते हैं. दैट इज कॉल्ड द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. उसी प्रोसेस को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर 12th बोर्ड क्लास, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स the gel electrophoresis questions may be arises. Okay, so you have to be prepared for that topic also. After that we are going to discuss the plasmid. Okay, plasmid सबसे important है because 12th जो चैप्टर है हमारा उसमें भी बहुत सारे प्लाज्मिड को हमें डिस्कस करना. सो प्लाज्मिड इज अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन. बाय प्लाज्मिड का मतलब होता है प्लाज्मिड आर डबल सर्कुलर. एक तो ये डबल सर्कुलर होते हैं, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट्स, एंड दे हैव ग्रेट कैपेसिटी टू सेल्फ रिप्लिकेटिंग. इनके पास खुद की प्रॉपर्टी होती है कि ये खुद को क्या कर सकते हैं, सेल्फ रिप्लिकेट कर सकते हैं, एंड विच आर जनरली फाउंड इन मोस्ट ऑफ द इश्चेरिचिया कोलाई आर मेनी मोर बैक्टीरियाज. बहुत सारे बैक्टीरियाज के वर्जन में या कुछ बैक्टीरियाज में आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा. दीज आर कॉल्ड एज प्लाज्मिड. प्लाज्मिड का आई रिपीट एंड अगेन, plasmid is an extra chromosomal, double circular, okay, double standard, and mostly they have great capacity to self replicating own self. ये अपने आप को replicate के more और more numbers बना लेता है अपने आप को replicate करके. that is called the plasmid. इसको हम plasmid कहते हैं. अब हम बात करते हैं plasmid के. so there is a lots of plasmid in our environment and lots of plasmid in our biological field. हमारे biological field में बहुत सारे plasmid तैयार हो चुके हैं. so we are discussing only the PBr322. हम एक plasmid को देख रहे हैं PBr322 which is given in your book. आपके बुक में एक plasmid PBr दिया है जो काफी ऐसे सर्कल शेप में है, and this plasmid is a very important. why? because P का मतलब होता है P is represented as plasmid. मतलब जहां पे आपको P दिखाई देगा you have to understand P इंडिकेट प्लाज्मिड, यानी P इंडिकेट करता है प्लाज्मिड का. B जो है साइंटिस्ट का नाम है बॉलिवर, एंड R जो है ये भी साइंटिस्ट का नाम है रोड्रिग्यूस. ठीक है, दो साइंटिस्ट थे, एक बॉलिवर और एक रोड्रिग्यूस. इन्होंने इस प्लाज्मिड का डिस्कवर किया था कैलिफोर्निया ऑफ यूनिवर्सिटी में. सो प्लाज्मिड का P मतलब प्लाज्मिड, BR मींस इसका नॉमेनक्लेचर है. सपोज इट इज अ नॉमेनक्लेचर ऑफ एनी प्लाज्मिड. किसी भी प्लाज्मिड का अगर नॉमेनक्लेचर हम देखते हैं, सो PBR मींस P मतलब प्लाज्मिड, BR मींस मतलब
Bolivar and Rodriguez, two types of scientists are involved to discover such type of plasmid. उसके बाद 322 जो है ये इनका सीरियल नंबर है, ठीक है, ये इनका सीरियल नंबर है ऑफ देयर प्रैक्टिकल फील्ड। ये जो भी अपना प्रैक्टिकल करते थे उसके बाद ये अपना कुछ सीरियल नंबर डिजाइन करते थे। सो प्लाज्मिड PBr 322 इज अ सीरियल नंबर ऑफ 322, यानी 322 एक्सपेरिमेंट करने के बाद इनको ये प्लाज्मिड निकल कर आया था। आफ्टर द 322 experiment has been completed, they get the result of PBr. Okay, once again PBr like nomenclature, and most of the time the plasmid can be asked in your board exams also, ठीक है। प्लाज्मिड, उसके बाद बॉलिवर और रॉड्रिग्यूज, दो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस प्लाज्मिड का डिस्कवरी किया था, ठीक है। दैट्स व्हाई इनका जो नोमेनक्लेचर है वो इनके हिसाब से पड़ा हुआ है। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस द पीसीआर। पीसीआर मींस होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मैकेनिज्म टू गेटिंग हाई नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ जीन्स, हमें ज्यादा से ज्यादा जीन का प्रोडक्शन हो, दैट इज कॉल्ड पीसीआर। पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इनके एप्लीकेशंस इतने ज्यादा हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में इनके एप्लीकेशन सबसे ज्यादा है और इनके यूजेस भी सबसे ज्यादा है। वी विल डिस्कस ओनली 5 कैरेक्टर्स इन दिस बिकॉज PCR in so many times the questions may be arises that explain the function of PCR or explain the applications of PCR। कई बार PCR के एप्लीकेशन, कई बार PCR के फंक्शंस बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो फर्स्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ PCR? PCR is a stand for polymerase chain reaction. In this it is a special type of mechanism in which it can get a higher result of multiple genes in a very short time of intervals, and they also called as photocopy machine। इनको हम एक्चुअल नॉर्मल वे में फोटोकॉपी मशीन के नाम से भी जानते हैं। व्हाई? बिकॉज ये एक कम समय में बहुत ज्यादा मल्टीपल फॉर्म में किसी भी सबस्टेंस को हमें देता है, दैट इज कॉल्ड पीसीआर। इसको हम पीसीआर कहते हैं। बट फर्स्टली हाउ दे गेट कंबाइंड, इसका जो कॉम्बिनेशन है, इसका जो रिएक्शन है, इसके जो मैकेनिज्म है, इट इज जनरली डन ऑन द 3 बेसिक प्रिंसिपल्स। 3 बेसिक प्रिंसिपल पे होते हैं, जो फर्स्टली हमारे हैं डीनेचुरेशन, उसके बाद रीनेचुरेशन और उसके बाद है सिंथेसिस। सबसे पहले बाय प्रोवाइडिंग ए स्पेशल टाइप ऑफ टेम्परेचर by 50 to 60 degree, firstly PCR components can be broken and after that they have to combine to cooling। उसके बाद पहले तो इनको ब्रेक किया जाता है, डीनेचुरेट किया जाता है मतलब खत्म किया जाता है, उसके बाद इनको वापस रीनेचुरेशन करवाया जाता है मतलब कंबाइन किया जाता है, ठीक है। सो आफ्टर द कॉम्बिनेशन इनको कूल करके, जब वो रुक जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, उनको कूल करके वापस इनके सिस्टम को सिंथेसाइज किया जाता है। सिंथेसाइज करने का मतलब होता है स्टोरेज ऑफ दिस चेन रिएक्शन। इस चेन रिएक्शन को हम स्टोर करते हैं एंड दैट टाइम इट टेक द फर्दर प्रोसेस टू कंप्लीट पीसीआर। फर्स्ट ऑफ ऑल पीसीआर हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय कैरी मुलिस इन 1984। सबसे पहले पीसीआर को कैरी मुलिस ने 1984 में डिस्कवर किया था, ठीक है। एंड ही वाज आल्सो अ ग्रेट साइंटिस्ट टू यूजिंग सच टाइप्स ऑफ टेक्निक्स बिकॉज इन नाउअडेज these types of techniques are most of the using in our biotechnology field। Okay, so next we are going to discuss, these are the 3 basic principles। denaturation means breaking of different types of mechanism, break करके उसको cool करके रीनेचुरेट किया जाता है। रीनेचुरेशन के बाद जैसे हम लोग रिकॉम्बिनेंट देखे थे वैसे यहाँ पे रीनेचुरेशन है एंड आफ्टर दैट सिंथेसिस प्रोसेस इज डन। सिंथेसिस का मतलब होता है द स्टोरेज ऑफ सेम प्रोसेस, मतलब उसको स्टोर करके और बढ़ाते जाना, दैट इज कॉल्ड सिंथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर। पीसीआर के एप्लीकेशंस क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें यूज देखना है पीसीआर का, पीसीआर किस किस फील्ड में या पीसीआर का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो देखना है हमें वो कहां पर होता है, ठीक है। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट द एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर मींस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज जनरली यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ मल्टीपल कॉपीज, यानी सबसे ज्यादा कॉपीज निकालना किसका? जीन का, एंड इट कैन बी डन बाय पीसीआर टेक्निक। पीसीआर टेक्निक की मदद से वी कैन ऑब्टेन अ हाई लेवल एंड हाई क्वालिटी ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन, किसी भी जीन का। ओके, वी नो दैट द फंक्शन ऑफ जीन। सो किसी भी जीन का बहुत ही कम समय में मल्टीपल कॉपीज निकालना, मल्टीपल कॉपीज मतलब उनका प्रोडक्शन ज्यादा करना बाय यूजिंग पीसीआर टेक्निक। इस पीसीआर टेक्निक से, क्योंकि हम फोटोकॉपी मशीन का मतलब जानते हैं, व्हेन वी पुट वन पेपर एंड दैट टाइम वी हैव टू गिव द कमांड टू ऑब्टेन 100 पेपर। अगर हम एक फोटोकॉपी मशीन पे किसी भी पेपर को रख के 100 कमांड दे दे तो उसमें करीबन 100 पेजेस निकल आएंगे। वो भी 100 पेजेस जो निकलेंगे वो एग्जैक्ट कॉपी होंगे उस
फ्रंट वाले पेज की। सो यहाँ पे भी वही होता है कि जो जीन होता है उसी जीन की मल्टीपल कॉपीज हम पीसीआर टेक्निक से निकाल सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट देयर इज अ सेकंड प्रिंसिपल इज आल्सो देयर। सेकंड प्रिंसिपल की हम बात करते हैं। सो पीसीआर यूज्ड टू डिटेक्ट मैनी डिसऑर्डर्स। जैसे ह्यूमन बींग्स में बहुत सारे डिसऑर्डर्स है। डिसऑर्डर्स का मतलब उसको कुछ मेंटल प्रेशर है, कुछ पार्किंसन डिजीज है, किसी में कुछ और सेक्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स है। ये पीसीआर टेक्निक की वजह से हम उस बीमारी को, उस डिसऑर्डर्स को हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट we can also set the DNA sequencing in a proper manner। जो भी DNA के थर्ड स्टेप we are going to discuss by using the PCR technique। PCR technique की मदद से हम DNA को सीक्वेंस बना सकते हैं। as sequencing we have studied in palindrome sequence। जो हमने palindrome sequence में देखा था वही प्रोसेस का हम यूज करके DNA को वापस उसी सीक्वेंस में ला सकते हैं, ठीक है। so that is the third principal applications of PCR। now next, PCR is used in forensic test as we have studied in so many criminal records, CBI and many most CID, also we have seen so many movies। so that time PCR technique is also used in the forensic test। forensic test में भी PCR applications का use होता है for detecting sex related problems, for detecting the many more diseases, for detecting the abject criminal, कौन criminal वगैरह, ये सारी चीजों का use जो है forensic मतलब लैब में भी इनका यूज होता है पीसीआर का, जिससे वो एग्जैक्ट कल्प्रिट को पकड़ सके, ठीक है। सो नेक्स्ट, पीसीआर का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है। पीसीआर जो होता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज यूज्ड इन द सेक्स ऑफ ह्यूमंस टू आइडेंटिफाई or to determination of sex of humans and embryos are in vitro conditions। उनके अंदर जो भी IVF वगैरह होते हैं, in vitro fertilization वगैरह, उनके कंडीशंस को चेक करने के लिए हम पीसीआर का भी यूज करते हैं, ठीक है। सो पीसीआर जनरली यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स आर द सेक्स ऑफ ह्यूमंस। किसी भी ह्यूमंस का सेक्स ऑर्डर्स पता करने के लिए, या फिर उसके एम्ब्रॉयो का, या फिर उसके इन विट्रो जो फर्टिलाइजेशन होते हैं उसके कंडीशंस को पता करने के लिए वी हैव टू यूज द पीसीआर टेक्निक। उस पीसीआर टेक्निक का यूज करते हैं। एंड जनरली इट इज आल्सो यूज्ड टू डिटरमाइन द एम्ब्रियोनल स्टेजेस। एम्ब्रियोनल स्टेजेस के बारे में भी इस प्रिंसिपल की वजह से हम उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पीसीआर। दैट टाइम व्हेनेवर क्वेश्चंस में भी arises that what is the meaning of PCR, explain, you have to write down the definition of PCR and write down the mechanism, because this is a very important question and you also mention the some applications of PCR। आपको मैकेनिज्म भी लिखना है और साथ में उसके एप्लीकेशंस भी लिखना है पीसीआर के, बिकॉज पीसीआर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ओके, नाउ आफ्टर दैट व्हेन द पीसीआर इज ऑब्टेन्ड, वी ऑब्टेन द जनरली मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन। जब हमें वो जीन निकल कर आ गया, सो हाउ टू जनरली ट्रांसफर जीन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब उस जीन जो हमको निकल के आया बाय यूजिंग द पीसीआर टेक्निक, अब वो जीन को हम कैसे ट्रांसफर करेंगे। सो इन देयर बुक there is a several types of characters are given। आपके बुक में बहुत सारे कैरेक्टर्स दिए हैं, बट वी हैव टू फॉलो ओनली सम ऑफ द कैरेक्टर्स। सबसे पहला होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है जो भी हमारा बैक्टीरिया का इश्चेरिचिया कोलाई है, ई कोलाई जिसको हम कहते हैं, ठीक है, इसको हम ई कोलाई कहते हैं। सो इश्चेरिचिया कोलाई में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में ये देखा जाता है कि ट्रांसफॉर्म करना, मतलब जो बैक्टीरिया है उसके अंदर दूसरे प्लाज्मिड वेक्टर को ले जाकर ट्रांसफॉर्म कर देना, इंसर्ट कर देना बाय यूजिंग द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड बाय यूजिंग द लाइगेज एंजाइम, ठीक है। इसकी मदद से इनके अंदर लाके इश्चेरिचिया कोलाई के अंदर प्लेस कर देना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज अ फर्स्ट प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस की हम बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन। ये जो सेकेंड प्रोसेस है इसको हम ट्रांसडक्शन के नाम से जानते हैं। जनरली ट्रांसडक्शन इज अ सेम बट इट इज अ डिफरेंट थिंग। इसमें हम डायरेक्ट कर रहे थे, ट्रांसडक्शन में वी आर यूजिंग बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस। इसमें वायरस का यूज करके हम ट्रांसफर करते हैं। व्हाई? बिकॉज वी नो दैट वायरस हैज ग्रेट कैपेसिटी टू रिप्लिकेट ओन सेल्फ इनसाइड द लिविंग होस्ट। अगर वायरस का यूज करते हैं तो जीन ट्रांसफर तो होते हैं, साथ में जीन की और मल्टीपल कॉपीज बहुत सारी बनेगी, ठीक है, क्योंकि वायरस की खुद की कैपेसिटी होती है कि वायरस के जो रिप्लिकेशन मोड होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस द माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन का मतलब होता है हम बड़े से बड़े जीन्स जो होते हैं जनरली इसको ट्रांसफर करने के लिए वी हैव टू यूज सेवरल इंजेक्शन प्रोसेस। इन दिस वी हैव टू इंजेक्टेड द जीन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हम इंजेक्टेड मीडियम से एक जगह से दूसरी जगह किसी जीन को, सपोज यहाँ पे एक जीन था और यहाँ पे हमने उस जीन को डाला, तो यहाँ से हम उस जीन को सबसे पहले कैरी आउट करेंगे और इसके अंदर लाके हम क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे। तो ये जो जीन है हमारा वो इसके अंदर आ जाएगा बाय यूजिंग ए इंजेक्टेड प्रोसेस, ठीक है।
and last is electroporation. This word is also related to gel electrophoresis. That time electroporation का मतलब होता है we have to provide electric media to pressurize on the genes to go inside the Escherichia coli. अगर by using the electric media, electrons वगैरह के electric media का use करके उस जीन को प्रेशर डालकर उस जीन को इस बॉडी के अंदर भी Escherichia coli के अंदर भी प्लेस किया जा सकता है, and that is called electroporation. Most of the times the gene transfer can be asked in your board exam, so gene transfer can be done by 4 process and many more process are given, but we have to discuss only 4 principle. हमको सिर्फ 4 देखना है. Transformation, I told you. Transduction, it is used by the virus. Microinjection, it is used by the injection, and electroporation, it is used by the electric media. Electric media से electroporation होता है by providing special types of radiation to passes the gene from one from to another. ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह के लिए हम electric media का use करते हैं. Okay, so after the transformation of gene transfer, we have to selection of recombinant clones. अब gene transfer हो गया, so we are getting a clones, हमको clones मिलेंगे. So that time we have to observe a better clone, क्योंकि हमें क्लोन्स को भी पूरा प्रॉपर चेक करना पड़ेगा. इस क्लोन इज एप्लीकेबल फॉर सर्वाइव. क्या क्लोन हमारा एप्लीकेबल है सर्वाइव करने के लिए, या जो हमें क्लोन मिल रहा है इट इज एग्जैक्ट टू द सेम कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट, क्या वो अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी है. सो वी हैव टू यूज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्शंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट क्लोन्स. ठीक है, हमको बहुत सारे क्लोन्स का रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की मदद से उनको चेक करना पड़ता है कि क्या वो क्लोन प्रॉपर ऑर्डर में है कि नहीं है. Okay, so this is all about the 11th chapter of your biology. In next, we have to discuss the 12th chapter. Actually, we have discussed in genetic and many more components of the biotechnology. So, if you have a doubt regarding all the topics, you can contact me. Okay, in next video, we will discuss some more interesting topic of chapter 12th. Okay, thank you, students.